Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, good morning. ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीजल साइकिल। सो प्रीवियस क्लास में एक पॉइंट था कंप्रेशन रेशियो का। ओके, सो ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो कहां से कहां तक वेरी करता है एंड डीजल साइकिल का okay, so the compression ratio for auto cycle is varies from 6 to 10 while the diesel cycle is from 60 to 20। ओके, सो आप देख रहे हो डीजल साइकिल में क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो जो होता है काफी हाई होता है। ठीक है, सो हम लोग इसलिए डीजल साइकिल में क्या करते हैं, हम लोग स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर करते हैं एट द एंड ऑफ द कंप्रेसर स्ट्रोक। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं थ्रू फ्यूल इंजेक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। So what are the four process of the diesel cycle? So process 1 to 2, the air is compressed in the process 1 to 2 reversibly and adiabatically। So firstly हम लोग एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं रिवर्सिबली एंड adiabatically। So this is 1 to 2 or in PV plot 1 to 2 is our reversible adiabatic compression। नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3। सो 2 to 3 में क्या करते हैं हम लोग, हीट इज टू एडेड टू रिवर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ऑटो साइकिल में हम लोग हीट नहीं हो रहा है। कोई डाउट है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। ओके, एक मिनट, अब शो हो रहा है? यस सर। ओके, so in auto cycle we add the heat at constant volume process। now in diesel cycle we add the heat and constant pressure। ठीक है, इसलिए ध्यान रखोगे कहीं कहीं पे ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस साइकिल भी लिखा हुआ रहता है। ओके, क्यों लिखा हुआ रहता है, इन ऑटो साइकिल में हम लोग हीट ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बट इन डीजल साइकिल में हम लोग हीट ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, इसीलिए डीजल साइकिल को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं।
ओके, सो ये सब नाम याद रखना है, ठीक है। डीजल साइकिल और एसआई इंजन साइकिल और कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, सॉरी सीआई इंजन साइकिल और कांस्टेंट प्रेशर इंजन साइकिल। So firstly, we compress the air reversibly and adiabatically. This is 1 to 2. Next, we add the heat at constant pressure. So this is a constant pressure 2 to 3, and we add the heat at this point. Next process is after heat addition क्या होगा? Expansion. So work is done by air and expanded reversibly and adiabatically. This is our expansion process 3 to 4, and heat is then rejected by air reversibly at constant volume. So these 2 to 3 processes differ from this Otto cycle. ठीक है? Now this is our TS plot. So 1 to 2 is reversible adiabatic. That means it is an isentropic process. So 1 to 2. Next 2 to 3 we add the heat at constant pressure. So this temperature will increase. 3 to 4 again it will be an isentropic process, and 4 to 1 heat rejection. Now हम लोग क्या फाइंड करेंगे? Efficiency for this diesel cycle. Okay, so again मैं यहाँ पे consider कर रहा हूँ let m kg the mass of air is circulate during the cycle of operation. So Q1, so Q1 is the at constant pressure. So what we can write? So Q1, this is 2 to 3 process is our Q1, and this is the constant pressure. So m cp of, sorry, cv of m cp of T3 minus T2. This is Q1. Cp specific heat at constant pressure. ठीक है? In constant volume cycle, here we write Cv. Now this Q2. Okay. So what is the Q2? This 4 to 1. So Q2 4 to 1 is the constant volume process. Okay. So we write here m Cv of T4 minus T1. Now, so efficiency of diesel is, what is efficiency? 1 minus Q2 by Q1. Okay, 1 minus Q2 by Q1, or 1 Q2 is mCb of T4 minus T1 divided by mCb of T3 minus, so mm is cancel. So T4 minus T1 divided by gamma into T3 minus T2. So this is efficiency of diesel. ठीक है? ये मेरा एक्सप्रेशन हुआ A. ना अब जो मेरा ये एक्सप्रेशन है दिस टेम्परेचर टर्म, ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड कटअप रेशियो के टर्म में. ओके, जैसे हम लोग ऑटो साइकिल में हम लोग एफिशिएंसी को एक्सप्रेस किए थे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड, वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे दो पैरामीटर्स में. फर्स्ट पैरामीटर्स है कंप्रेशन रेशियो एंड सेकेंड पैरामीटर है कट ऑफ रेशियो. ओके, सो दिस सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्रेशन रेशियो. ओके, सो स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes, sir.
ओके, सो कंप्रेशन रेशियो, सो ये मेरा एक्सप्रेशन है वो एफिशिएंसी फॉर डीजल इज 1 माइनस ऑफ T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ T3 माइनस T2, ठीक है। सो ये जो एक्सप्रेशन आया हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो के टर्म में। सो कंप्रेशन रेशियो, so volume at the beginning of compressor divided by volume at the end of compressor, so according to diagram V1 by V2, this is our compression ratio. Now cut-off ratio, इसको हम लोग जनरली RC से डिनोट करते हैं। ओके, सो वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है, वेयर वी फिनिश द हीट एडिशन वॉल्यूम एट द डिवाइडेड बाय at the beginning of volume where we start the heat addition process, so this is V3 by V2। यहाँ पे क्लियर लिखा वॉल्यूम एट कट ऑफ डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, so this is our कट ऑफ रेशियो। नाउ एक्सपेंशन रेशियो, जैसे कि हम लोग कंप्रेशन रेशियो लिखते हैं वैसे ही क्या है एक्सपेंशन रेशियो, सो वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, ठीक है। जनरली इसको RE से डिनोट करते हैं, सो V4 बाय V3 अकॉर्डिंग टू आवर गिवन डायग्राम। सो ये पैरामीटर्स याद रखना है। कंप्रेशन रेशियो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दो न्यू पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर है कट ऑफ रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो। ना अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जब आप ये दोनों को प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, RC इंटू RE, तो देखो RC इंटू RE दैट मीन्स कट ऑफ रेशियो इंटू एक्सपेंशन रेशियो, सो V3 बाय V2 इंटू V4 बाय V3। ओके, सो V3 इज कैंसिल, V4 बाय V2। ओके, एंड V4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V4 को हम लोग लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाय V2, एंड V1 बाय V2 इज कंप्रेशन रेशियो, सो RK दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कट ऑफ रेशियो इंटू एक्सपेंशन रेशियो विल बी इक्वल टू द कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। सो RK ये याद रखना है MCQ के लिए। So RC into RE equal to RK। Now अब जैसे हम लोग ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी को ड्राइव के लिए प्रोसेस बाय प्रोसेस चले थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहेगा, ठीक है, हमारा ये टारगेट यहाँ पे जो रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 डिफरेंट टेम्परेचर टर्म, ठीक है, T1 T2 T3 एंड T4, ठीक है। देखो एफिशिएंसी ड्राइव कैसे करते हैं, सो ये जो 4 आपका डिफरेंट टेम्परेचर टर्म है, सो एक को मैं क्या करूंगा कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, ठीक है, एक को कांस्टेंट रखेंगे, अदर 3 को दूसरे कांस्टेंट जो है उसके टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टेम्परेचर टर्म आएगा और कैंसिल हो जाए टेम्परेचर के टर्म। सो इस एक्सप्रेशन में जो हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो T3 है इसको हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे, T3 को हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे, रेस्ट T1 T2 एंड T4 है इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ T3 में। ओके, सो दैट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स सेम टेम्परेचर टर्म। सो वन बाय वन चलते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा, प्रोसेस एक्सप्लेन भी किया हुआ है, प्रोसेस 1 to 2। सो प्रोसेस 1 to 2 डायग्राम में आप अगर आप देखो तो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो वी कैन राइट T2 by T1 इक्वल टू V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1, और T2 इक्वल टू T1 V1 by V2 is the compression ratio to the power gamma minus 1। So T2 इक्वल टू आ गया दिस T1, ठीक है, इसको हम लोग अभी यहीं पर रहने देते हैं,
प्रोसेस 1 to 2 में, प्रोसेस 2 to 3 में अब हम लोग चलते हैं. ओके, सो प्रोसेस 2 to 3 द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. सो वी कैन राइट V2 by T2 equal to V3 by T3 और V3 by V2 equal to T3 by T2. V3 by V2 is our cutoff ratio. So this is RC. So RC equal to T3 by T2. ओके, और हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, T2 by T3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 by RC. सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे. सो T1 T2 को क्या लिख सकते हैं T3 by RC into 1 by RK to the power gamma minus 1. देखो T1 को हम लोग T3 में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है. T1 को क्या किए T3 में एक्सप्रेस कर दिए. T2 को भी हम लोग T3 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं T2 इक्वल टू T3 बाय RC. सो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 को हमको ये ना T4. अब हम चलते हैं यानी प्रोसेस 3 to 4 में चलते हैं. ओके, सो प्रोसेस 3 to 4 में, so process 3 to 4 is the again adiabatic process. So we can write T4 by T3 equal to V3 by V4 to the power gamma minus 1 और V3 V4 को हम क्या लिख सकते हैं V1 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ सेम वॉल्यूम टू द पावर गामा माइनस 1. ठीक है, नाउ अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे. सो क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं V3 बाय V2 इंटू V2 बाय V1 टू द पावर गामा माइनस 1. ओके, सो V3 by V2 is the compression ratio, sorry cutoff ratio, and V2 by V1 is the compression ratio 1 by RK to the power gamma minus 1. सो क्या है T4 by T3 आया है यहाँ पे RC by RK to the power gamma minus 1. ठीक है, अब हम लोग इतना भी जितना भी आया मेरा, सो T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से T4 इक्वल टू T3 इंटू RC by RK टू द पावर गामा माइनस 1. नाउ अब जितना भी आया T1 T2 सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्सप्रेशन ए में. सो पुट करने के बाद क्या आएगा 1 by 1 माइनस गामा ऑफ RK टू गामा माइनस 1 कॉमन लेंगे. सो RC टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 by RC. अब T3 कैंसिल, सो 1 माइनस 1 by RC. फाइनली जो मेरा एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या आएगा, दिस 1 माइनस 1 by गामा इंटू 1 by RK टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू RC टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय RC माइनस 1. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो कि कट ऑफ रेशियो हम लोग वेरी करेंगे तब डीजल साइकिल के एफिशिएंसी में क्या फर्क होगा. ना अब बताओ फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, ओके, सेम कंप्रेशन रेशियो for the same compression ratio of each cycle have maximum efficiency, ऑटो और डीजल. क्या होगा आंसर,
for the सर डीजल हो कम सर। diesel हाँ compression ratio, which cycle have maximum efficiency cycle? डीजल कैसे बोल रही हैं? एक्सप्रेशन से ऐसे तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कंपैरिजन में, बट आप एक्सप्रेशन देख के भी बता सकते हो कि कौन सा साइकिल का मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। एनी अदर स्टूडेंट बता सकते हो? एक्सप्रेशन को ध्यान में देखोगे तो पता चल जाएगा। ओके एक्सप्रेशन को देख के आप लोग को नहीं पता चल रहा है? ओके एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कितना होता है? 1 - 1 by r² to the power गामा -1। और इस एक्सप्रेशन और इफिशिएंसी को कंपेयर करो। ओके जस्ट एक्सप्रेशन को यहाँ पे कंपेयर करना है और बताओ कि कौन सा मैक्सिमम होगा। जस्ट एक्सप्रेशन को आपको कंपेयर करना है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। ऐसे नहीं बोलोगे, जब तक मैं 1 by 1 नहीं पूछूंगा तब तक नहीं बोलोगे। प्राकर प्रकाश गुप्ता। यस सर। ओके दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान में देखो और बताओ कि इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। क्या बोला सर आपने? आपकी आवाज बीच में दरअसल कट गई थी। ओके मेरा क्वेश्चन है, मेरा सेम कंप्रेशन रेशियो व्हिच साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी? जस्ट यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन देख के ओनली मोटरसाइकिल का ज्यादा होगा सर। हाँ किसका? मोटरसाइकिल का मैक्स होगा सर। ऑटो साइकिल का मैक्सिमम होगा। ठीक है ठीक है। ऐसे लास्टली हम डिस्कस करेंगे बाय ग्राफ से, ठीक है, कि कैसे पता करेंगे, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन देख के भी आप पता कर सकते हो। कैसे एक्सप्रेशन देख के? अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो क्या होता है? 1 - 1 by r² to the power गामा -1। ठीक है अब यहाँ पे 1 - r² to गामा मैंने अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म क्या है? 1 - 1 by r² to the power गामा -1 टर्म तो है ही। इसके अलावा भी मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म क्या है? 1 by गामा rc to the power गामा -1 डिवाइडेड बाय rc -1। ठीक है तो कहने का मतलब है इतना टर्म इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है यानी ग्रेटर हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? मोर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगा 1 में, होगा ना? इतना टर्म मेरे क्या हो गया और सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 से, देन एफिशिएंसी क्या होगा? ऑब्वियसली इससे क्या होगा? लोअर होगा। फॉर अगर रेशियो सेम का बात करूं, समझ में आ रहा है रीजन? यस सर। ओके एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ओनली मेरे पास इतना एक्सप्रेशन है 1 - 1 by r के ऊपर गामा -1। बट एफिशिएंसी डीजल की बात करो तो इतना मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म है। ओके सो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, देन क्या है? मोर क्वांटिटी इज टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पे कम मिलेगा एज कंपेयर टू ऑटो साइकिल।
ठीक है। ऐसे हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो वहां पे चार्ट के डायग्राम थ्रू देखेंगे, ठीक है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। ना अब यहाँ पे आप लोग एक काम वर्क कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ एज द कट ऑफ रेशियो आरसी इंक्रीजेज द डीजल साइकिल इफिशियंसी विल डिक्रीज, ठीक है। ये जस्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी पुट कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेज द डीजल इफिशियंसी विल डिक्रीज। इसके लिए आप कुछ एक्सप्रेशन जैसे वेरी कर सकते हो, कट ऑफ रेशियो ले लो 4 to 5, ओके, गामा का वैल्यू 1.4 है, कट ऑफ रेशियो सेम, सॉरी कंप्रेशन रेशियो सेम रखना है दोनों केस में। जब आप दो एक्सप्रेशन पुट करोगे और कट ऑफ रेशियो को जब आप इंक्रीज करोगे तब क्या मिलेगा, एफिशिएंसी और डीजल साइकिल आपको डिक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट है डीजल साइकिल का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सर फिर से बताइए सर। कौन सा बताऊं फिर से? सर बोल रहे हैं इसका diagram। सर किसका इफिशियंसी ज्यादा होता है, डीजल का या ऑटो साइकिल का? ऑटो साइकिल का लगता है अभी तक तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दोगे। खाली बता दीजिए ना सर, एक्सप्लेनेशन है, खाली बता दीजिए किसका ज्यादा होता है, कम किसका होता है। केवल बता देने से होगा, क्यों होता है तुमको नहीं पता रहना चाहिए। हेलो हाँ बोलो। सर, एक बार पीवी और टीएस डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया सर, बढ़िया से बता दीजिएगा। पीवी और टीएस, अच्छा ठीक है, पीवी और टीएस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बताओ पीवी टीएस में, ठीक है, तो देखो प्रोसेस 1 to 2 है। 1 to 2 में क्या है, कंप्रेशन है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो 1 to 2, तो इसका ग्राफ का नेचर आप लोग डिस्कस किए होंगे, पहला चैप्टर पैराबोलिक है, सॉरी हाइपरबोलिक। सो 1 to 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, देन क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। सो 2 to 3 द हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 to 4 अगेन क्या है, एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। So 3 to 4 is the reversible adiabatic expansion, and 4 to 1 heat rejection at constant volume. So अब आप बताओ कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। पीवी प्लॉट में कहाँ पे प्रॉब्लम है ये आप बताओ। बोलो जी, शांत हो गया, अभी कोई पूछ रहा था, कोई डाउट था पीवी एंड टीएस में, बताओगे तब ना कहाँ पे प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हाँ विकास कुमार बोलो। ये सर वो जो भी से कहते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा हुआ ना सर, हाँ। फिगर एक बार दिखाइएगा। फिगर नहीं नजर आ रहा है? सर फिगर कहाँ दिख रहा है? सॉरी स्क्रीन हाँ में दिख रहा सर, दिख रहा ओके। सो वन सर इसका पीवी में वर्क क्या है सर, डब्ल्यूसी क्या है सर? ओके, दिस इज WC फॉर कंप्रेशन। ये क्या रिवर्सिबल एडियाबेटिक, WC फॉर कंप्रेशन है एंड WE फॉर एक्सपेंशन है, ओके। नहीं सर, बुक में कुछ और दिया हुआ है। किसी बुक, सब बुक में यही दिया होगा। यहाँ पे सर वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा हुआ है सर, डेंसिटी कांस्टेंट किया हुआ है सर। डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होता है, मास व वॉल्यूम ना, तो मास यहाँ पे सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। पीवी प्लॉट किसी भी बुक में आप देख लो डीजल साइकिल का, आपको यही मिलेगा। कोई डाउट है क्या पीवी प्लॉट में? डाउन सर।
अगर कोई बुक फॉलो कर रहे तो देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको दूसरे बुक अगर कोई फॉलो करे, कोई भी बुक से पीबीटी सब प्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लॉट में सभी का ऐसे प्रोसेस समझने की कोशिश करो। सो सिमिलरली टीएस प्लॉट में हम लोग क्या करेंगे, 1 to 2s। सो टीएस, so 1 to 2 is reversible adiabatic. Reversible adiabatic means isentropic process, that means entropy will remain constant. So 1 to 2 entropy constant, 2 to 3 the heat addition, so obviously temperature will increase and the curve will be hyperbolic, and 3 to 4 again reversible adiabatic, that means isentropic, and 4 to 1 is heat rejection process. Now अब क्वेश्चन था कि इफिशिएंसी किसका ज्यादा होगा। So obviously efficiency of Otto cycle is greater than diesel cycle for the same compression ratio के लिए। ओके, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। efficiency of Otto cycle क्या होता है, 1 minus 1 by RK to the power gamma minus 1। ओके, एंड डीजल साइकिल इज दिस, ठीक है। तो इतना एक्सप्रेशन मेरे को देखो 1 minus 1 बार के, ये ऑलरेडी ऑटो साइकिल में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस डीजल साइकिल में मेरा इतना एक्स्ट्रा टर्म ऐड है। ओके, दिस मीन्स क्या है, एक्स्ट्रा टर्म इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि मोर ग्रेटर देन क्वांटिटी इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 1, दैट मीन्स ऑब्वियसली क्या है, एफिशिएंसी ऑफ डीजल लेस देन होगा एज कंपेयर टू ऑटो साइकिल फॉर दिस सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए। सर उस समय तो हम सही बताए ना सर। किसका मैं सही बताया, उस समय बोले थे सर डीजल साइकिल कम होता है एफिशिएंसी और ऑटो का ज्यादा होता है। आप बोल रहे हैं ऑटो का ज्यादा है होता है, डीजल का कम होता है, दोनों में तो एक के बराबर बात है सर। अच्छा चलो, तब लगता है मेरे को सुनने में मिस्टेक हो गया हुआ। आप बोल रहे हैं ऑटो का ज्यादा होता है डीजल का कम, हम बोल रहे हैं डीजल का ज्यादा कम होता है, ऑटो का ज्यादा होता है, तो दोनों में तो एक ठीक के है, बात है ओके ना ओके, सर। ठीक है, हो सकता है। यही इसका क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ रहे थे सर दोबारा। ओके सर। ओके, सर हाँ बोलो। सर सुपर चार्जिंग सर किस लिए किया जाता सर, बताएंगे ना। सुपर चार्जिंग पहले समझने पहले कि सुपर चीज हम लोग करते क्यों हैं, ठीक है। जब हम लोग कंप्रेस्ड एयर को हम लोग हाई स्पेसिफिक हीट में, सुपर चार्जिंग का मतलब क्या होता है पहले, एडिंग एक्स्ट्रा मतलब एयर को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। सुपर चार्ज हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक पावर आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो हम लोग नॉर्मल एयर यूज करते हैं जैसे, ठीक है, इनकम्प्रेस एट द इनटेक स्ट्रोक में, ऑटो साइकिल में क्या इन होता है, इनटेक स्ट्रोक में, ऑटो साइकिल में क्या इन होता है एट द इनटेक स्ट्रोक में, एयर और फ्यूल सर। एयर फ्यूल का मिक्सचर सर। एयर एयर फ्यूल का मिक्सर। एंड डीजल साइकिल में सिर्फ एयर होता है सर इंटेक। 2 मिनट रुक जाइए, उसके मैं बाद फिर मार्कशीट, एयर को कंप्रेस करने के बाद नहीं 7 सेमेस्टर का मार्कशीट आया हुआ है, 6 सेमेस्टर का शायद पेंडिंग है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ। ओके, 5 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, बोलिए ना, 2 मिनट वेट करेंगे। सर 2 मिनट वेट करने बोलिए, मैं दे रहा हूँ।
अच्छा ठीक है, कोई डाउट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 मिनट्स का टाइम बचा हुआ आज। सर हाँ सर बोल रहे थे कि एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज होता है सर इसमें सर, अगर हम सुपर चार्जिंग करते हैं तो एफिशिएंसी मेरा बढ़ेगा सर, और क्या बोलते हैं मैकेनिकल जो मेरा देखो, स्पेसिफिक आउटपुट मैकेनिकल बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा, दैट मीन्स एफिशिएंसी बढ़ेगा। एक लड़का शायद तुम ही क्वेश्चन भेजे थे नहीं? ये सर हम ही भेजे थे सर। अच्छा, तो उसमें सर देखो टर्बो अगर, चार्जिंग क्या होता है सर? अरे कार्नोट साइकिल कितना बार डिस्कस करेंगे? कौन विक्रम कुमार दास बोल रहे हो? बोल रहे हैं क्या सर, टर्बो चार्जिंग क्या होता है सर? टर्बो चार्जिंग, सुपर चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग को सुपर चार्जिंग बोला जाता सब एक ही चीज है। ओके, ये बहुत आगे है, टर्बो चार्जिंग, सुपर चार्जिंग वगैरह। है सर। वो थर्मल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे जी? नहीं, 7 सेमेस्टर का है। 2 मिनट रुको, मैं दे रहा बोल रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज का अटेंडेंस आप लोग गूगल क्लासरूम में, एक्चुअली थोड़ा कुछ काम है इसलिए मैं जल्दी से गूगल क्लासरूम में आज का अटेंडेंस पुट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो आज का करोगे ओके सर। नेक्स्ट क्लास, जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूछना है, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आप बना के भेजेंगे और क्लासरूम में। अच्छा ठीक है, मैं वहां पे पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आप लोग का क्वेरी है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा।